Hey guys, welcome back to another episode of In a Swank Way. I have Mr. Rajesh Avasti with me today, and yes, interestingly, we are going to talk about Vastu today. कई सारे लोग वास्तु नहीं करते, right? But they are still successful. तुषार, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो वास्तु कराना जरूरी है. एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कैसे इंटरकनेक्टेड है और सबसे पहले अगर है कि नहीं है. So we say that there are 6 ways you can look at life. One of is that Sankhya philosophy, 6 philosophies. So Ayurveda, astrology and Vastu, all three go hand in hand. So what is the role of वास्तु कंसल्टेंट in short? Like अगर हमको सब information readily available है जो हम लोग पढ़ के भी implement कर सकते हैं, so how you will make difference in? So apparently your success depends on where your kitchen is. Your peace of mind, your happiness may be hanging somewhere on the direction of your front door. And God forbid, if your toilet faces wrong, well, good luck to you. In this episode, we are going to flip things for you and make Vastu remedies very simple for you without any todfod. And for that, I have Mr. Rajesh Avasti with me. He's civil engineer by profession for more than 32 years, and he started Vastu as a hobby with last 12 years, and now he's helping a lot of people solving their problem, understanding their core issues and giving them some simple remedies. So yes, let's tune in for it. And yeah, I am very happy and excited to interact with him, burst some myths, and yeah, let's begin. Hi Rajesh, how are you? Hi Tushar, I'm very good, thank you. How are you doing? I'm good, doing good. So let's start. Let us start. Yeah. Hey guys, welcome back to another episode of In a Swank Way. I have Mr. Rajesh Avasti with me today. And yes, interestingly, we are going to talk about Vastu today. Okay, first of all, welcome Rajesh on our show. Thank you for having me here today in a swank way. I love it. Thank you. Okay, so सबसे पहले मेन मुद्दे पे आते हैं. Let's talk about Vastu as a basic first, because a lot of people are confused. Is it a science? It is a culture? What it is? Or is this something in between? So I just want you to clarify us before we go ahead. So Tushar, Vastu is a science. Okay. It is complete logic. If you can go into the depth of it, you will find that it is the physics which has been invented by the rishis of our culture. Okay. Almost 7,000 years before Christian era. The beauty of this science is not that it has been perfected over years. The beauty of this science is that the perfected science has been handed over to us, which has been followed by us as it was given to us. Okay. So that is the beauty of all Sanatan sciences. So वास्तु एक ऐसा साइंस है जहां पे कहीं पर भी जब चार दीवारें बन जाती है, कन्फाइंड स्पेस क्रिएट होता है, तो सर्टेन एनर्जीज आर डेवलप्ड इनटू इट. Vastu is study of those energies in respect with our day-to-day life and how we can make it better. Okay. Interestingly, when the Vastu rules are followed, it invites abundance, peace of mind, health, and better relationships in our life. Okay. So, why we should follow Vastu? Because we should not take a chance with how the quality of life would be. We can design it with the help of it. Okay. So Rajesh, what do you think? Like, why should we follow the Vastu? वास्तु फॉलो इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है. देयर इज नो हार्म टू इट. वी हैव बीन फॉलोइंग सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ जो हमको बचपन से हमारे पेरेंट्स ने सिखाई है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाई है. देयर इज अ कम्युनिटी अराउंड अस एंड दे हैव टॉट अस मेनी थिंग्स कि ये करना, ये नहीं करना. सरकार हमें कुछ सिखाती है कि लाल लाइट हो तो रुक जाना आपको, और ग्रीन लाइट हो तो आपको रोड क्रॉस करना है. वैसे ही वास्तु के जो रूल्स है वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिए हैं, and they are for our betterment. Unfortunately, over a period of time, वास्तु का जो साइंस है, it has been sidetracked a little bit. Okay. और the current generation is taught to study science as we know it now, biology, chemistry, and physics. And although Vastu complies with all those rules, but it has not been taught. So there is no awareness with people currently that Vastu is a complete science and it can be used for the welfare of
us Okay. as a whole. So there are also some myths or some, confusions among people कि जो religion है वो एक वास्तु से डिफाइंड है या फिर वो उनका इस को रिलेशन है. Is there anything specific as such? Sleep has no religion, Okay. है ना? In the same way, when we eat food, we may eat different food, but it has no religion, Okay. है ना? In the same way, Vastu has no religion. It is a science which is given to us to benefit us. And as a human being, each and everyone has that basic right to use it and get the benefit from it. Also one more thought about वास्तु कि कई सारे लोग वास्तु नहीं करते हैं, right? But they are still successful. So what is your opinion on it? Like how much it is required to follow वास्तु? तुषार, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो वास्तु कराना जरूरी है. Okay. सिंपल एग्जांपल है कि आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब कोई बीमारी है, है ना? इन द सेम वे, व्हेन पीपल थिंक दैट देयर इज सर्टेन मीनिंग ऑफ देयर लाइफ व्हिच हैज नॉट बीन फुलफिल्ड येट, and they are searching how they can fulfill that meaning into their life, Vastu can be one of the tools which can help them to realize that meaning. Okay. If you are completely, perfectly happy and satisfied with your life, there is absolutely no requirement of Vastu. So some energies are also a part of वास्तु, right? तो अगर मैं किसी एक वास्तु में रह रहा हूँ तो वहां के एनर्जीज और मुझ में ऐसा क्या चेंजेस हम लोग करते हैं कि जिससे वास्तु और प्रोडक्टिव या फिर बोलते हैं ना बेनिफिशियल हो जाती है हमारे लिए. It's a very good question, and the answer is long actually. Okay. But what I do, if I have to simply put it, we try to create a balance. तो अगर आप देखो कि if you are walking and if your body is in perfect balance, then you will be able to walk for a longer period of time, and you will be able to cover a farther distance. But अगर बॉडी में कुछ पेन है, कहीं पे कुछ लगा है, आप ठीक से चल नहीं पा रहे हो, ऐसे टाइम पे आप ज्यादा चल नहीं पाओगे, डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे, पेन होगा, वो अलग है. सो बेसिकली व्हेन वी डू वास्तु, व्हाट वी ट्राई टू ब्रिंग इज बैलेंस. तो अगर आपके लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, बी इट मनी, बी इट रिलेशनशिप, बी इट पीस ऑफ माइंड और बी इट वेलबींग, कहीं इम्बैलेंस है और कहीं पर कुछ पेन है, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप सर दर्द है तो आप ऑफिस जाना पसंद नहीं करोगे, यू वुड वांट टू डील विद दैट हेडेक फर्स्ट. इन द सेम वे, अगर लाइफ के किसी एस्पेक्ट में कुछ पेन है तो इट अफेक्ट्स द अदर एस्पेक्ट, इट अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस, इट अफेक्ट्स आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट अफेक्ट्स आवर रिलेशनशिप्स. Okay. है ना? एंड व्हेन दे अफेक्ट सो मच दैट दे हिंडर विथ आवर डे टू डे लिविंग, दे हिंडर विथ आवर अर्निंग्स, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मेजर फोकस राइट नाउ कि पैसा चाहिए. तो जब वो हिंडर करने लगता है, देन वी लुक फॉर वेज वेयर something that can help us relieve from that kind of pain. Okay. And So then, like, what are the indicators कि मुझे वास्तु देखना चाहिए? indicators तो सिंपली ये है कि एक चांस लेना चाहिए. Okay. डेफिनेटली आप वास्तु के साथ एक चांस लीजिए. मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो आज से 10 साल पहले तक ये वास्तु हमारे जैसे लोगों के लिए अवेलेबल भी नहीं था. Okay. It was only available to select few people who could really spend some real good money and multiply their fortune. But since 2012, my master Shri Khushdeep Bansal had started teaching this Vastu science in the modern outfit, where it can now be applied into a flat, a bungalow, a commercial shop, or even a factory in an equally effective way. Okay. This science is now available to us. It has only been 13 years since this science has actually come to us. Okay. So before that it was not available for everyone. Before that it was not available for everyone. वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना तो लोग सोचते थे यार वो ये तोड़ने को बोलेगा, वो तोड़ने को बोलेगा, किचन वहां शिफ्ट करो. Now if we think in the Mumbai context, it is not possible to move even a wall. Right. Forget about moving the kitchen and bedroom. तो लोग सोचते ही नहीं थे वास्तु करना. And luckily for us, we have been given such a great level of what you call
तकलीफ सहन करने की एक जो शक्ति भगवान ने दी है, वो भगवान ने बहुत ज्यादा दी है। तो कैसी भी तकलीफ हम एडजस्ट करके रह लेते। तो अब तक तो रहते ही थे, अब तक ऑप्शन भी नहीं था, बट नाउ इज द टाइम व्हेन वी हैव द ऑप्शन ओके एंड इट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू वेरी मच, देन व्हाई शुड नॉट यू गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके एंड आई हैव आल्सो हर्ड कि जैसे आपने बोला कि अभी जो भी स्पेस है, अपार्टमेंट्स है, टावर्स है, बिल्डिंग्स में है, घर किसी का चौल में है, किसी का बंगलो है, राइट? बट अर्लियर इट वाज समथिंग लाइक आई हैव हर्ड दैट कि इट वाज स्पेसिफिकली लिमिटेड जो ग्राउंड पे या फिर बेस पे जो घर बनता है उसी के लिए वास्तु एप्लीकेबल होता है एंड नॉट फॉर द लेवल्स। बहुत सही सुना है आपने। पहले प्लॉट होता था और फिर उसमें घर के डिजाइन होते थे, राइट? तो उसमें बहुत आसान था कि साउथ वेस्ट में बेडरूम ले लो, साउथ ईस्ट में अपना किचन ले लो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आप लाइट ले लो, वहां पे बोरवेल या कुआं बना लो पानी के लिए, नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल ले लो। तो दैट फ्रीडम वाज देयर। यू कैन आल्सो चूज टू हैव योर डोर ओपनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। पर आज जब हम यहाँ रहते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्लॉट के जो शेप्स है वो भी टेढ़े मेढ़े हैं, रास्ते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े हैं, और उसके ऊपर जब बिल्डिंग बनती है तो फ्लैट्स में, आई एम अ सिविल इंजीनियर आल्सो, लाइक आई हैव हर्ड लाइक डायरेक्शंस में भी मल्टीपल डायरेक्शंस हो गए, मल्टीपल डायरेक्शंस हो गए। यस, तो वो डक्ट्स वगैरह ऐसे आते हैं कि आपके पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं। इट्स लाइक पहले कैसा था कि आपके पास चॉइस थी, आप ट्रेन में चढ़े, 4 सीटें खाली है, आपको कहाँ बैठना है आपके ऊपर है। अब ट्रेन में भीड़ इतनी होती है कि चढ़ जाए तो मेहरबानी है ना। तो राइट नाउ द टाइम इज लाइक दैट कि जो मिला अपने बजट में, लोग सोचते कि मेरे बजट में मुझे क्या मकान मिल जाएगा, तो जिस बजट में जो मकान मिला लोग ले लेते, राइट? है ना। तो अब उसमें ऑप्शन कहाँ है आपके पास। लकीली गॉड इज वेरी काइंड। तो ऐसा नहीं है कि आपने वास्तु फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपने वास्तु देखा नहीं तो कोई ऊपर बैठा है वो आपको पनिश कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। सो लकीली अभी कैसा है कि अभी जो वास्तु हमें अवेलेबल है उसमें तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। ओके और उसमें हमें ये भी पता है कि अगर साउथ ईस्ट में आपके पास किचन नहीं है और अगर वेस्ट में आपका किचन है या ईस्ट में आपका किचन है, तो उसके लिए क्या सिंपल रेमेडी की जा सकती है ताकि वास्तु दोष की वजह से आपको तकलीफ ना हो। ओके नाउ अगेन लाइक जैसे आप बता रहे हो ना, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, व्हाटएवर, इतने सारे रील्स आते हैं, इतने सारे रील्स में इतना सब कुछ बताया जाता है कि आपका किचन ये डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका ये, यू नो, ऑलमोस्ट आई सी कि ना, हाँ, स्पेसिफिक एक डायरेक्शन बताता है एंड यू हैव टू फॉलो दैट। बट टेल मी ऑनेस्टली, इज इट, आई मीन, इज इट रिटन समवेयर कि अच्छा किचन सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर मंदिर होता है तो मंदिर सिर्फ इसी डायरेक्शन में होना चाहिए? इफ देयर इज, बोल रहे हैं ना कि थोड़ा भी कुछ इधर उधर होता है, इट अफेक्ट्स, और इज देयर एनीथिंग मोर टू इट? There is definitely more to it, and there is a perfect, I would say that study, research है। अभी हमारे पास बहुत सारे केस स्टडीज है जिसमें ये एस्टेब्लिश हुआ है कि कौन सी दिशा में मंदिर होने से उसका क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, या किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं है, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, बुक्स में लिखा है कि किचन अग्निकोण में होना चाहिए। ओके, ठीक है, पर अगर अग्निकोण में नहीं है तो क्या, इसके बारे में कहीं लिखा नहीं गया है। बट नाउ दैट वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 30-40,000 केस स्टडीज, वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर फाइंडिंग्स विच आर डॉक्यूमेंटेड कि अगर किचन साउथ ईस्ट में नहीं है आपका गैस बर्नर और साउथ में है तो क्या होगा, ईस्ट में है तो क्या होगा, अगर नॉर्थ में है वो बर्नर है तो क्या होगा, और उसको कैसे रेमेडी की जा सकती है। ऐसे सिंपल सॉल्यूशंस भी हमारे पास है। ओके, या, एंड आई हैव आल्सो हर्ड कि सम कॉम्बिनेशन, जैसे कि आग और पानी एक साथ नहीं होने चाहिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई, लाइक, आई मीन, इन, यू नो, अपने जो छोटे घर होते हैं उसमें तो सब एक जगह पे, एक के बाजू में एक सब ऑर्गेनाइज किया हो रहता है, और मे बी मॉडर्न इंटीरियर डिजाइनिंग, सो हाउ इम्पोर्टेंट इट्स टू कंसिडर सर्टन कॉम्बिनेशंस? तो सर एक चीज सोचो, आप आग और पानी साथ में कैसे रख सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, बट आई एम जस्ट, रख सकते हैं। आग में पानी कैसे साथ में रख सकते हैं? या तो आप आग के ऊपर पानी का पतीला रखो, बर्तन पानी गर्म करने के लिए, या फिर आग जल रही है उस पर पानी डाल दो। सिंपल है।
अगर आग जल रही है, आपने पानी डाल दिया तो आग बुझ जाएगी। अगर पानी है, नीचे से आग लगा दी तो पानी उबलने लगेगा। So both of them will lose their natural attribute Okay. when they come together. Interesting. So that is why we say कि आग और पानी साथ में नहीं होना चाहिए. But over a period of time, the context behind this statement, a very big statement, is lost. Okay. The context is that जो 5 एलिमेंट है, पानी है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है और आकाश है, तो ये पांचों एलिमेंट के फिक्स डायरेक्शंस हैं. नॉर्थ इज वाटर, ईस्ट इज एयर, साउथ ईस्ट एंड साउथ इज फायर, साउथ वेस्ट इज अर्थ एंड वेस्ट इज स्पेस. ठीक है, तो नॉर्थ जो पानी का एलिमेंट है, इन दैट डायरेक्शन अगर अग्नि आ जाती है तो उसके सर्टन इफेक्ट्स है. इफेक्ट क्या होंगे कि person will become very aggressive towards more and more opportunity, more and more clients. Okay. है ना. और अगर पानी है, if there is a water in terms of say blue color or black color in the southeast direction, जो अग्नि की दिशा है, वहां पे अगर पानी है किसी भी फॉर्म में, then it can create cash flow issues. So that is the major reason why we say that पानी और अग्नि दोनों अलग अलग रखने चाहिए. पानी की जगह है नॉर्थ में और अग्नि की जगह है साउथ ईस्ट में. तभी हमारे फ्लैट सिस्टम में हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो साउथ की दिशा में, साउथ ईस्ट की दिशा में जब हम घर में पेंट कराते हैं तो ब्लू या ब्लैक कलर के पर्दे अवॉइड करें, ब्लू या ब्लैक कलर का फर्नीचर अवॉइड करें, और ब्लू या ब्लैक कलर की वॉलपेपर भी अवॉइड करें. सिमिलरली नॉर्थ की डायरेक्शन में हम लाल कलर यूज ना करें. जब मैं लाल कलर कहता हूं तो उसमें पिंक भी है, उसमें ऑरेंज फैमिली भी है, The spectrum. द होल स्पेक्ट्रम ऑफ. Okay. Yeah. So राजेश जी, that means कि हमको ये सब चीजें literally नहीं लेना है, like not literal water and fire, right? I mean the representation of maybe colors, elements, entity या फिर कुछ objects है, उसको भी आप replace कर सकते हो आग और पानी से. जैसे आपने curtains बोला, wall colors बोले, कुछ objects रख दिए अपन ने, तो उससे हम लोग डिजाइन एलिमेंट से भी वास्तु को और एनहांस भी कर सकते हैं. एट द सेम टाइम वी कैन लेवरेज द बेनिफिट्स ऑफ वास्तु. एब्सोल्युटली. आप 3 चीजें ध्यान में रख सकते हो. एक तो है रंग, कलर. सो इफ इज फायर, द कलर कुड बी एनी रेड स्पेक्ट्रम फैमिली. देन देयर आर शेप्स. सो ट्राइंगल रिप्रेजेंट फायर शेप्स. ओके. है ना. सो ट्राइंगल डिजाइंस ऑन वॉलपेपर्स, ऑन फर्नीचर, ऑन कर्टन शुड बी अवॉइडेड along with the color. Okay. है ना. And the third is again if you go objects. So if there is iron, आप इस्त्री करते हो, या माइक्रोवेव है, they represent fire element. So even if they are kept in the north, they will disturb both water and both fire. Okay. है ना. Even a triangle shape, if it's a blue color triangle, तो then water and fire come Right. together because blue color represent water and triangle represent fire. So that is how it is work. Thanks. Interesting, no? Yeah, आग का आग और पानी का पानी. आग का आग और पानी का पानी. Yes. Yeah. With that, one more question from my side कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कैसे इंटरकनेक्टेड है, और सबसे पहले है कि नहीं है? So, origin of everything comes from Sankhya philosophy. Okay. So we say that there are 6 ways you can look at life. One of is that Sankhya philosophy, 6 philosophies. So Ayurveda, astrology and Vastu, all 3 go hand in hand, but they are independent in its nature. To give result, Ayurveda does not need astrology and Vastu. Astrology does not need Ayurveda or Vastu, and Vastu does not require Ayurveda and astrology. But if they can be used in combination, they give greatest of the results. Okay. So like individually they are equally Complete in its all sense. Okay. Individually they are complete in all sense. But if they use together, they take 3x power. 3x power. Yes. Okay. Yes. और कई सारे रील्स में ना राजेश जी, मैंने ये देखा है, सुना है कि टेम्पल जो है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है. बट व्हाट इफ मेरे घर में वो जगह ही नहीं है? तो वेरी गुड क्वेश्चन तुषार. मैंने पीपल फेस दिस इश्यू, क्योंकि वो सुन के रखा है, सबको वास्तु पता है, तो लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल होना चाहिए, और आपके घर में वो जगह ही नहीं है जहां पे आप नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल रख सको.
ऐसे समय पे आप क्या कर सकते हो, है ना? तो जब हम ऐसे घर में वास्तु करते हैं तो हम उनको रेकमेंड करते हैं बिकॉज देयर आर अदर ऑप्शंस विच कुड बी सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, विच आर इक्वली इफेक्टिव एंड गुड. ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो मन की शांति की दिशा है, मोटिवेशन की दिशा है और खुद से जुड़ने की दिशा है. तो हमारे जो भगवान है जो हम मंदिर में रखते वो एक क्या बोलते हैं रूपक है कि हम उनको देख के हम खुद से जुड़ते हैं. राइट. पर अगर वो दिशा अवेलेबल नहीं है तो ईस्ट कुड बी ए इक्वली गुड डायरेक्शन. यू कैन हैव योर गॉड्स. वेस्ट इज ए इक्वली गुड डायरेक्शन और वहां पे भी आप मंदिर रख सकते हो. Okay. So what is the role of Vastu consultant in short? Like अगर हमको सब information readily available है जो हम लोग पढ़ के भी implement कर सकते हैं, so how you will make difference in? मैं तो कहूंगा कि आप डेफिनेटली जैसे आपको पढ़ाई से लेके कोई सवाल है, आप अभी तो एआई आ गया है, आप गूगल पर जाइए, टाइप कीजिए कि बेटर पढ़ाई के लिए मैं वास्तु के कौन से रूल्स को फॉलो कर सकता हूँ. एंड वंस यू फॉलो दोज रूल्स, है ना, आपको फायदा जरूर होगा. ठीक है. पर जब आप चाहते हो कि आपको आपके लिए डिजाइन की हुई रेमेडीज दी जाए, बिकॉज हम सबकी लाइफ अलग है. इफ यू सी इन अ फ्लैट, इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग 40 फ्लैट होते, 50 फ्लैट होते और सबकी डिजाइन एक जैसी, एक के ऊपर एक सब फ्लैट्स होते हैं. पर सबकी लाइफ अलग है. Right. सब अलग अलग बिजनेस में, सब अलग अलग पैसा कमा रहे हैं. तो सबका भाग्य तो अलग है ना. तो जब एक कंसल्टेंट आपके घर आपके आके वास्तु करता है तो वो आपकी लाइफ में आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट कैसी है और आपकी लाइफ कैसी रही है उसके हिसाब से रेमेडीज डिजाइन करता है. Okay. ऐसा नहीं है कि लाल घोड़े सब भी लगा लो. आपने लाल घोड़े लगा दिए पर ब्लू फर्नीचर है तो कितना फायदा होगा. तो आधा अधूरा काम हो जाएगा. एक कंसल्टेंट जो है वो आपको एक पूरा पैकेज देगा जिसमें वो पूरा घर देखेगा, पूरा डिजाइन करेगा, वो आपको पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है एंड ही विल वर्क टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स. ना कि कोई ऐसे सॉल्यूशन दे दे जिसका आपको कोई फायदा ही नहीं और खर्चा बड़ा हो जाएगा. आप क्रिस्टल लटका लोगे, आप कुछ और कर लोगे, कहीं कुछ जमीन में गाड़ दोगे और लाखों रुपए खर्च करते लोग. पर जब उनको पूछते फायदा क्या हुआ तो उनके पास सिर्फ 2 जवाब रहते हैं कि हाँ थोड़ा फायदा हुआ या पता नहीं क्या फायदा हुआ. Okay. So you really need a good consultant who can design remedies for you and for you personally. Okay. Then tell me one thing, why people are so reluctant about, approaching Vastu consultant? I would actually like to tell you a very good story here. Okay. When in 1830 locomotives were designed, पटरी पे चलने वाली रेल जब डिजाइन हुई थी तो पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट इट. कोई भी नई चीज जब इंट्रोड्यूस होती है तो लोग उसका विरोध करते हैं. तो जो उस समय के जो जमींदार थे उन्होंने चैलेंज किया ट्रेन वालों को कि आपसे तेज तो हमारे घोड़े भाग लेते. तो एक ऐसी रेस हुई भी जिसमें एक घोड़ा गाड़ी और एक लोकोमोटिव के बीच में रेस हुई. तो जब रेस हुई शुरू तो पहले तो घोड़ा निकल गया आगे क्योंकि ट्रेन को स्पीड पकड़ने में, उस जमाने की ट्रेन थी 200 साल पहले तो वैसी ही थी, स्लो ही चलती थी. तो घोड़ा आगे निकल गया. पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो लंबी दूरी थोड़ी तय की उन्होंने तो ट्रेन आगे निकलने लगी. पर थोड़ा कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद ऐसा हुआ कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ हो गई और ट्रेन बंद पड़ गई. घोड़ा वापस आगे निकल गया और घोड़ा जीत गया. सो लोगों को जो बहुत खुशियां मनाई कि देखो हमारा घोड़ा आपकी ट्रेन से भी आगे जीत गया. पर आज अगर आप 200 साल बाद देखो तो आप खुद देख सकते हो कि घोड़ा जीता या ट्रेन जीती. बिल्कुल, है ना. ऐसे ही क्या होता है कि व्हेन ह्यूमन बीइंग्स ना वी आर डिजाइन लाइक दैट, वी हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन व्हाट वी हैव. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ताकत पे भरोसा करते. तो जब कोई चैलेंजेस आती तो हम सोचते कि मैं अपनी ताकत से सारी तोड़फोड़ कर दूंगा और सब ठीक कर दूंगा. जब वो ताकत से तोड़फोड़ नहीं होती तब वो सोचते कि अभी कोई टेक्निक लगाई जाए. एक बैट्समैन है, क्रिकेटर है, वो जब क्रिकेट खेलता तो शुरू में तो वो कैसे भी शॉट लगाता. फिर जब उसके पास एक कोच आ जाता तो वो प्रैक्टिस करता कि बैट को कैसे पकड़ना है, खड़े कैसे रखना है, झुकना कैसे है, बैट घुमाना कैसे है. तो एक टेक्निक डेवलप होती और वो उस टेक्निक को फॉलो करने के लिए बार बार उसको परफेक्ट करता. वंस ही हैज दैट टेक्निक, मतलब अभी उसके पास स्किल आ गया,
ताकत थी, उसने उसमें एक स्किल डेवलप किया। जब उसने वो स्किल डेवलप किया तब उसको ये होता कि ही इज रेडी टू टीच इट टू अदर्स ऑल्सो एंड ही इज रेडी टू मोनेटाइज इट ऑल्सो। सो ही स्टार्ट्स क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी। तब वो बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करता, और जब बुद्धि का इस्तेमाल शुरू करता एंड ही इज एबल टू मोनेटाइज इट और बिकम सक्सेसफुल, एक पॉइंट जब ऐसा आता तब उसे लगता कि अभी मैं इस स्किल का क्या करूं, तो वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। ही स्टार्ट्स यूजिंग अदर पीपल्स रिसोर्सेज, ही स्टार्ट टेकिंग अदर पीपल टुगेदर सो ही कैन मल्टीप्लाई हिज टाइम एंड ही कैन मल्टीप्लाई हिज फॉर्च्यून बाय द स्किल दैट ही लर्न बाय हिमसेल्फ, अपनी ताकत के भरोसे। तो वैसे ही वास्तु की जब बात आती तो पहले तो लोग लड़ते हैं, है ना, फिर जब लड़ते लड़ते थक जाते तब वो सोचते कि क्या ऐसा कुछ है जो हमारी मदद कर सके। तब कोई बोलता कि वो एक बार वास्तु भी ट्राई कर ले, तो उनको लगता चलो एक बार ट्राई करते। तो हमारे पास दो तरह के लोग आते हैं। एक ऐसे लोग आते हैं जो परेशान हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो सोचते कि कुछ भी चीजों फायदा कर जाए, और कोई अच्छा उनका दोस्त होता कहता है एक बार वास्तु ट्राई कर ले यार, राजेश अवस्थी बहुत अच्छा वास्तु कंसल्टेंट है। ऐसे मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं। पर इसके अलावा भी कुछ क्लाइंट मेरे पास ऐसे आते जो कुछ कई करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी कर रहे हैं, पर उनकी एम्बिशन है कि वो और ज्यादा टर्नओवर कर सकते हैं। दे सी कि उनके पास ऐसा पोटेंशियल है, ऐसे रिसोर्सेज है दैट दे कैन अचीव मच मोर, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। ऐसे टाइम पे भी वास्तु आपको हेल्प कर सकता है, एंड आई डेफिनेटली से दैट यू शुड टेक दिस चांस। Surely. Thank you, Rajesh ji. And now I have something interesting. मैंने ना क्या किया है? I have this short rapid fire for you. So I say a Vastu rule, and you say if it is a fact, flexible or fiction. ठीक है, ठीक है? fair enough. Should I start? Yes, Okay. Temple in northeast. flexible. South facing house equal to bad. Fiction. Kitchen must be in southeast. Flexible. Water and fire can't be mixed. Fact. Mirror in bedroom. Fiction. Bathroom near kitchen. Fiction. Staircase in center of home. Flexible. Multiple entrances. Multiple entrances is necessity. तो जहाँ जरूरत है वही बनाओगे ना आप, तो इट इज अ नेसेसिटी. Yeah, thank you. Okay, now So I'll tell you here, it's very interesting that what I consider there are 3 restrictions in Vastu when you go and buy a flat, जिसका रेमेडी मैं भी नहीं करता हूँ. So one is if there is a toilet in the northeast direction, if a toilet there is in the southwest direction, अगर ये दो दिशा में टॉयलेट है तो हम इन्हें रिमूव करने के लिए कहते हैं, इसकी रेमेडी नहीं हो सकती. बाकी की दिशाओं में अगर टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी एक मेटल की पत्ती डाल के हम कर लेते हैं. एंड यू मस्ट नो कि जब पुराने जमाने में जब वास्तु के ग्रंथ लिखे गए तब टॉयलेट घरों के अंदर होता ही नहीं था, बराबर है ना. और अगर तभी टॉयलेट्स थे ही नहीं ना, ओपन जो मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में अभी ट्रांसफॉर्म कर दिया है, नहीं तो ओपन था, लोग जाते थे गांव में आज भी. सेकेंड थिंग, इफ देर इज अ एंट्रेंस ऑफ योर हाउस टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो एंट्रेंस भी बुरा नहीं है, पर कुछ ही लोगों को वो एंट्रेंस फलता है, मेजोरिटी लोगों को वो एंट्रेंस नहीं फलता है. इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन का अगर घर का एंट्रेंस है तो वो भी अवॉइड करना चाहिए. साउथ की दिशा बहुत ज्यादा पैसा देती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से भी ज्यादा पैसा साउथ डायरेक्शन का दरवाजा देता है. बट यू विल नीड अ कंसल्टेंट टू टेल यू दैट whether this door will fructify you or will not fructify you. Okay. So I think this is a very important information, and main door is a very important aspect of Vastu. Thanks. Okay, with this one myth you are tired of explaining over and over. साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए,
I think almost covered in our rapid अब fire. नहीं है तो क्या करोगे भाई? So again, targeted Gen Zs these days. What would you say to a Gen Z kid who says, "I don't believe in Vastu, but I want good vibes at home"? Definitely. So I would say that technology for Gen Z generation especially, that they are tech savvy people and technology is changing so fast, है ना? And when the technology changes, the earlier technology becomes irrelevant. There were cassette players, then CDs came, then pen drives came, now it's on the cloud. And they adapt to it very quickly. And the Vastu knowledge, although it is ancient, it is still relevant. It is not outdated. So I would say that if you really want something that will make a difference to your life, give it a chance. हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट में फॉर गुड वाइफ, है ना? Okay. Okay, final takeaway. If someone listens to just one Vastu principle, what should it be? Yes. So the only principle that when you really, if you want to follow, I would say that follow your heart. Okay. That is the best principle in the world. The only problem is that when it speaks to you, you are not there to listen. You are so busy with other things. So really, if you have to make a decision, it could be anything in your life, anywhere. If you listen to your heart, something is there, someone is there which will respond to your questions. And don't doubt it. That is only advice. Thank you so much. Thank you, Rajesh ji, for coming over. It was really nice and really great. हम लोग ने जो बातें की, and thanks for busting some myths also about Vastu. So, guys, if you have any more questions, any doubts, anything that you want to ask Mr. Rajesh, please drop in comment box, and maybe he'll revert and explain you in detail. Thank you so much. I think it's a pleasure to be here with you in a swank way. I've seen your other episodes and they are really great. And today I have seen you in action and I can vouch for you. How was it? It was really excellent. And I can say that you have a long way to go. This is just a humble beginning. Thank you. And my best wishes to you, Thank you. Tushar.